آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خاتم النبیین یعنی نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے میرے بعد کوئی بھی نبی آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو بآسانی دیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فانطلقنا سراعا حتی دخلنا الدیر فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمَ إِنسَانٍ رَأَيْنَهُ قَطٌّ۔ حضرات گرامی قدر، آج کا جو موضوع ہے وہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ حقیقت دجال اور فتنہ قادیانیت کے حوالے سے ہے۔ دجال کا اسلامی کنسپٹ کیا ہے اور قادیانی کنسپٹ کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دجال کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کیا شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں۔ تو ناظرین، اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دو احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں ابن سیاد کو دجال کا شبہ اس کا کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شبہ کا اظہار کیا۔ دوسری حدیث ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی، واضح طور پہ اس بات کا اعلان کیا کہ تمیم داری ہی کی روایت میں جو جزیرے پر قید دیکھا گیا تھا شخص وہی دجال ہے۔ تو اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس حدیث کے بارے میں جو صحیح مسلم کی روایت ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے جو شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ دجال کے بارے میں ایک شبہ یہ پایا جاتا ہے کہ آیا وہ انسان ہے یا شیطان ہے۔ اگر ہم دجال کو انسانوں میں سے شمار کریں تو اس حوالے سے بھی دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر شیاطین میں سے، جنات میں سے اس کو شامل کریں اس اعتبار سے بھی کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ علماء اسلام کے مابین اس بات میں اختلاف ہے کہ دجال شیاطین میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے۔ تو حضرات کرام قدر، اب ہم آپ کے سامنے وہ دلائل پیش کرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال انسانوں میں سے ہے۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے صحیح مسلم کی، اس میں دجال کو دیکھنے پر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ بیان کیے وہ یہ تھے کہ فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطٌّ، کہ ہم جلدی سے اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا کبھی شکل، کبھی ہیکل انسان، آدمی دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی آدمی نہیں دیکھا تھا۔
तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात बयान की और कहा कि हमने जब उस गिरजे में पहुंचे तो हमने एक ऐसा कभी हैकल कभी शक्ल इंसान देखा जो उससे पहले हमने नहीं देखा था। इसी तरह जो दोस्त अहबाब जो उलमाए कराम दज्जाल को इंसान समझते हैं, मुस्नद अहमद में बयान की गई रवायत इस रवायत को दलील बनाते हैं कि यखरुज दज्जाल मिन यहूदियति इस्बहान माहू याऊन अलगा मिन अल यहूदी अलैहिम अलियान कि दज्जाल का खरूज सरजमीने सबहान से और यहूदिया नामी कबीले से होगा और यहूद में से 70,000 ऐसे अफराद उस दज्जाल की पैरवी करेंगे जिन पर सबज चादरें होंगी। ज़रात गिरामी कदर, एक तरफ तो ये 2 अहादीस हैं दज्जाल के बारे में जिससे साबित होता है कि दज्जाल इंसानों में से होगा, लेकिन दूसरी तरफ सही मुस्लिम में एक और रवायत है, सैयदना अबू सईद खदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि काला लम्मा राजा नबी मिन तबूका सअलूहु अनिस्साति फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ताती मियाता सनतिन व अलल अर्ज़ि नफ्सुन मनफूसतुन अल-यौम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए तबूक से वापस आए तो उसके बाद लोगों ने आपसे क़यामत के बारे में सवाल किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 साल नहीं गुजरेंगे कि आज ज़मीन पर सांस लेता हुआ कोई शख्स मौजूद हो, यानी इससे पहले जितने लोग पैदा हो चुके हैं वो सब मौत का शिकार हो जाएंगे। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ात लैलतिन सलातल इशाई फी आखिरिन हयाती फलम्मा सल्लमा कामा फकाला अराइतुकुम लैलतकुम हाज़िही फ़इन्ना अला रासिन मियतिन सनतिन मिन हाला यनक़ाह मिम्मा हुआ अला ज़हरिल अर्ज़ि अहदन क़ाल इब्नु उमर फवहल अन्नास फी मक़ालति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलका फीमा यतहद्दसून मिन हाज़िहिल अहादीसी अन मियत सनतिन व इन्नमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबका मिम्मन हुवा अल-यौम अला ज़हरिल अर्ज़ि अहदुन युरीदु बिज़ालिका अन यदखरिम ज़ालिकल कर्न। फरमाया हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में एक रात हमें इशा की नमाज पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो खड़े हो गए और फरमाया क्या तुम लोगों ने अपनी इस रात को देखा है? इसे याद रखो, बिलाशुबा इस रात से 100 साल के बाद जो लोग इस रात में रूए जमीन पर मौजूद हैं उनमें से कोई भी बाकी नहीं होगा, यानी कि सारे के सारे इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बाज़ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताल्लिक गलतफहमियों में मुब्तला हुए जो उसमें 100 साल के हवाले से मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं कि 100 साल बाद जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था आज जो लोग रूए जमीन पर मौजूद हैं उनमें से कोई बाकी नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद ये था कि इस कर्न, इस दौर, इस जमाने में रहने वाले तमाम लोगों का 100 साल तक खात्मा हो जाएगा।
इसी तरह सही मुस्लिम के अंदर एक और रवायत है, फज़ाइल सहाबा में 6486 नंबर रवायत है। अन सालिम अन जाबिर अब्दुल्लाह काला काला नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सालिम रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन नफ्सिन मनफूसतिन तबलुगु मियता सनतिन फ़क़ाल सालिमुन तज़ाकरना ज़ालिका इंदहु इन्नमा हिया कुल्लु नफ्सिन मख़लूक़तिन यौमइज़िन। क्या फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज सांस लेता हुआ शख्स 100 साल की मुद्दत तक नहीं पहुंचेगा। सालम ने कहा, हमने उनसे हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने इसके बारे में गुफ्तगू की। इससे मराद हर वो शख्स है जो उस वक्त पैदा हो चुका था, यानी हर वो शख्स जो उस वक्त पैदा हो चुका था, सिर्फ वही मुराद है, ना कि हर कोई दूसरा। तो हज़रात गिरामी कदर, इन हदीस के बाद अगर हम दज्जाल को इंसान तस्लीम करें, खा वो इब्न सयाद हो या जिसे तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जजीरे में कैद देखा हो, तो 100 साल के अंदर अंदर उस पर मौत का वारद होना लाजमी करार पाता है। सही मुस्लिम की इन्हीं अहादीस का हवाला देते हुए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब अज़ाला व हाम में लिखता है, लंबी तहरीर है, पेश किए देता हूँ। ये देखें, ये मेरे हाथ में रूहानी हुसैन जिल्द 3 अज़ाला व हाम मौजूद है। उसके अंदर वो लिखता है, लेकिन गिरजा से निकलने वाला दज्जाल, जिसके बारे में इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में फातिमा बिनते कैस से रवायत की और जिसको नहायत दर्जा कभी हैकल जंजीरों से जकड़ा हुआ बयान किया है, इसके जसासा की भी खबर लिखी है। और ये दज्जाल वो है जिसको तमीम दारी ने किसी जजीरा के एक गिरजा में देखा कि खूब मजबूत बंधा हुआ था और उसके हाथ उसकी गर्दन की तरफ जकड़े हुए थे। इस दज्जाल पर उलमा की बहुत नजर है कि दर हकीकत यही दज्जाल है। यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी इस बात को मानता है कि उम्मत मुसलमा के उलमा के नजदीक दज्जाल जो है वही शख्स है जो जजीरे में जकड़ा हुआ है। फिर आगे लिखता है कि जो आखिरी जमाना में निकलेगा, ये तो किसी का भी मजहब नहीं कि आखिरी जमाना में दज्जाल तवल्लुद के तौर पर किसी औरत के पेट से पैदा होगा, बल्कि बिल-इत्तफाक सल्फ व खल्फ यही कहते आए हैं कि दज्जाल महूद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में जिंदा मौजूद था और फिर आखिरी जमाना में बड़ी कुव्वत के साथ खरूज करेगा, और अब तक वो जिंदा है, हरगज सही नहीं है। मुस्लिम की 2 हदीसें इस ख्याल की कुल्ली इस्तेसाल करते हैं और वो ये हैं। तो नाज़रीन, ये वही 2 हदीसें हैं, एक हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली और एक हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली, जो बयान की है मैंने पहले कि दज्जाल जिनसे इंसान साबित नहीं होता। तो उन्हीं 2 हदीसों को पेश करके मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वाज़ेह तौर पे लिखता है कि अब इन दोनों हदीसों की रूह से, जिनमें से एक में हमारे सैयद व मौला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कसम भी खाई है, अगर हम तकल्लुफ़ात से तवीलें न करें तो साफ तौर पर साबित होता है कि जसासा वाला दज्जाल भी इब्न सयाद की तरह फौत हो गया है। ये शुबा पैदा किया है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नोट कीजिए ये बात, कहता है कि इससे साफ साबित होता है कि जसासा वाला दज्जाल भी इब्न सयाद की तरह फौत हो गया है। इसकी निस्बत उलमा का ख्याल है कि आखिरी जमाना में निकलेगा, और हाल ये है अगर उसको आज तक जिंदा फर्ज किया जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हतमी अहदीसों की तकज़ीब लाज़िम आती है।
ये है वो शुबा जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने पेश किया। इंशाल्लाह इस शुबे का भी और जो आगे उसने शुबहात फैलाया उनका भी तफसीली जवाब नकल करूंगा, बयान करूंगा, आपके सामने अर्ज करूंगा। लेकिन उससे पहले मजीद आगे बढ़ते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी क्या लिखता है। लेकिन इस बात को नोट कर लीजिए कि ये शुबा मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने जो पैदा किया, कहता है कि अगर इब्ने सयाद को या तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली रवायत में जिसको जजीरे में कैद जकड़ा हुआ तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा था, अगर इन दोनों को दज्जाल माना जाए, उसे या उसे, तो इन अहादीस के मिस्दाक अब तक वो तो फौत हो जाना चाहिए। अगर उसको जिंदा मानते हैं तो इन अहादीस की तकजीब लाजम आती है। ये है उसने धोखा देने की कोशिश करी। मैं इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगा कि धोखा कैसे उसका जो है रद्द होता है उसका इंशाल्लाह। फिर आगे लिखता है कि और इस हदीस में दज्जाल का ये कौल कि इन्नी अलल मसीह व इन्नी अयूशका अयूजन लई फिल खरूज, कि जो ज्यादातर उसके मसीह दज्जाल होने पर दलालत करता है, बज़ाहिर इस शुबा में डालता है कि आखिरी जमाना में वो निकलने वाला है। लेकिन बहुत आसानी से ये शुबा रफा हो सकता है जबकि इस तरह पर समझ लें कि ये ईसाई बतौर मुअर्रद से आला के इस दज्जाल के लिए है जो ईसाई गिरोह में ही पैदा होगा। अब ये ईसाई गिरोह में इस दज्जाल के पैदा होने की दलील दे रहा है, पहले शुबा डाल के हदीस में। ये फितना देखिए। फिर आगे लिखता है और गिरजा में से ही निकलेगा, और जाहिर है कि वारिस और मुअर्रिस का वजूद एक ही हुक्म रखता है, और मुमकिन है कि इस बयान में इस्तारात हूँ, हर बात में इस्तारा कहता है, मुमकिन है कि इस बयान में इस्तारात हूँ, ये भी धोखा। फिर आगे क्या कहता है सुनिए। फिर आगे लिखता है कि और जंजीरों से मराद वो मवाने हूँ, यानी इस्तारा हो कि जंजीरों से मराद वो रुकावटें, वो मवाने हूँ जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ईसाई वाइजों को रोक रहे थे और वह मजबूर होकर गोया एक जगह बंद थे। ये इशारा हो कि आखिरी ज़माना में बड़ी कुव्वत के साथ उनका खरूज होगा, जैसा कि आज कल है। इस जगह ये भी याद रहे कि हदीस मज़कूरा बाला में इस दज्जाल ने खुदाई का दावा नहीं किया, यानी कहता है कि मज़कूरा बाला हदीस में उस दज्जाल ने खुदाई का दावा नहीं किया। ये एतराज उठा रहा है, हालांकि अहादीस में दज्जाल का जिक्र है, जिन अहादीस में कि वो खुदाई का दावा करेगा। कब करेगा? वो क़यामत से पहले करेगा, ना कि उस वक्त जब अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया या उस वक्त जब तमीम दारी ने उसको देखा कि वो दज्जाल खुदाई का दावा करेगा। नहीं, जब उसका क़यामत से पहले ज़हूर होगा, खरूज होगा, जब वो निकलेगा तब उसने खुदाई का दावा करना। हदीस में तो ये बात है, और ये कह रहा है कि उस वक्त तमीम दारी के सामने जो है उस हदीस में नहीं बताया जा रहा कि उसने जो है दावा किया खुदाई का। फिर आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह मजीद इस पर गुफ्तगू करते हैं बाद में। फिर आगे लिखता है, बल्कि फिक्रा अयूशा का यूजन ली साफ दलालत कर रहा है कि दज्जाल को खुदा ताला के वजूद का इकरार है, और हदीसों में कोई ऐसा लफ्ज पाया नहीं जाता जिससे मालूम हो कि जसासा वाला दज्जाल अपने आखिरी ज़हूर के वक्त अपने खालिकुस समावात वल अर्ज़ होने का दावा करेगा। ये भी इसने झूठ बोला है अहादीस पर, इसका सबूत भी इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा। फिर आगे लिखता है, लेकिन मालूम होता है कि तकब्बर की राह से खुदाबंद खुदाबंद कहलाएगा। अहादीस में ये बात आई कि वो खुदा होने का दावा करेगा, दावा रूहियत करेगा, दावा रबूबियत करेगा,
पहले तो उसके दावा रबूबियत का इनकार किया मिर्जा कादियानी ने इस तहरीर में, अब कहता जी तकब्बर की राह से वो खुदाबंद खुदाबंद कहलाएगा। अंदाजा देखें इसका, अहादीस के अंदर शकूक व शुबहात और इश्कालात फैलाने और दज्जाल के बारे में मनगढ़ तावीलात किस तरह करता है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे लिखता है, जैसे इन लोगों का तरीका होता है जो अल्लाह ताला को बकुल्ली फरामोश कर देते हैं और उसकी परस्तश और अताअत से कुछ गर्ज नहीं रखते और चाहते हैं कि लोग उनको रब्बी रब्बी कहें, यानी खुदामद खुदामद करके पुकारें और ऐसी उनकी अताअत करें जैसे अल्लाह ताला की करनी चाहिए। और यही बदमाशी और गफलत का आला दर्जा है कि अल्लाह ताला की तहकीर दिल में बैठ जाए। मसलन एक ऐसा अमर है कि ऐसा अमीर है कि नमाज पढ़ने से मना करता है कि वाह याद काम है, उससे क्या फायदा, और रोजा पर ठट्टा करता है और खुदा ताला की अजमत को कुछ भी चीज नहीं समझता, उसकी आसमानी तकदीरों का कायल नहीं बल्कि अपनी तदबीरों और मकरों को तमाम कामयाबियों का मदार समझता है और चाहता है कि लोग ऐसे ही उसके आगे झुकें जैसा कि खुदा ताला के आगे झुकना चाहिए, और खुदा ताला के फरमा बरदारी पर चिढ़ता है और उसके अहकाम को जलील और ख्वार समझता है और अपने अहकाम को काबिल इज्जत ख्याल करता है और अपनी अताअत को खुदा ताला की अताअत पर मुकद्दम रखना चाहता है। वो हकीकत में खुदाई का दावा कर रहा है, अगरचे काल से नहीं मगर हाल से जरूर ये दावा इससे सादर होता है, बल्कि काल से भी दावा करता है क्योंकि चाहता है कि लोग उसको खुदामद खुदामद कहें। तो इस किस्म का दज्जाल का दावा मालूम होता है। इस तमाम तकरीर से, आगे लिखता है, इस तमाम तकरीर से मालूम हुआ कि मसीह इब्ने मरयम की तरह दज्जाल का भी मसीह ही आने वाला है। अहादीस में ना तो मसीह इब्ने मरयम के लिए किसी मसीह का जिक्र है, ना दज्जाल के लिए किसी मसीह का जिक्र है। ये मिर्जा कादियानी ने अपनी तरफ से मालूम होता है कई अल्फाज कह के अहादीस पर झूठ बोला है। फिर आगे लिखता है, यानी ऐसा ग्रोह जो बातबार अपनी सीरत और खासियत के पहले दज्जाल का हमरंग हो। अब इस तहकीक से ज़ाहिर हो गया, कौन सी तहकीक, जो मिर्जा कादियानी ने ये पेश की है लंबी चौड़ी तहरीर में। जैसे मसीह को मसीह इब्ने मरयम कहा गया, हालांकि हदीस में मसीह मसीह का जिक्र नहीं है। मसीह को मसीह इब्ने मरयम कहा गया। इस अमर को नजर में रखकर उसने मसीह इब्ने मरयम को रूहानियत को लिया और मसीह के वजूद को बातिनी तौर पर कायम किया। ऐसा ही वो दज्जाल जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में फौत हो चुका है, उसकी जिल और मसाल ने आखिरी ज़माना में उसकी जगह ली और गिरजा से निकलकर मशारक़ो मगारब में फैल गया। अज़ाला वहाँ में सफ़ा नंबर 258 तक 261 तक मैंने तहरीर आपके सामने पढ़ी है। रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 का सफ़ा नंबर 358 से 361 तक। हज़रात गिरामी कदर, अगर देखा जाए तो मिर्जा कादियानी के इस तवील तहरीर में दज्जाल के बारे में जो नजरिया पेश किया गया, उसकी असल बुनियाद एक तो दज्जाल का इब्ने आदम होना है और दूसरा सही मुस्लिम की वो अहादीस हैं जिनमें 100 साल के अंदर अंदर इस वक्त के जिंदा लोगों का मरना साबित होता है। इस सारी बहस के दो तरह से जवाब आपके सामने पेश करता हूं। अव्वल ये कि दज्जाल को इब्ने आदम समझने से इनकार कर दिया जाए। दज्जाल को इब्ने आदम समझने से इनकार कर दिया जाए और उसे शयातीन में से तसव्वुर कर लिया जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी हदीस में वाज़े और दो टोक अल्फाज में दज्जाल को इब्ने आदम या शैतान करार नहीं दिया। तो ये गुमान भी किया जा सकता है कि दज्जाल शयातीन में से हो, और उसी बात की तायद मिर्जा कादियानी ने भी एक मकाम पर की है। अपने किताब तोहफा गोलरविया के हाशिया
सफ़ा 183 पर रूहानी जिल्द 17 के सफ़ा नंबर 269 के हाशिए पर क्या लिखता है? ये तहकीक शुदा अमर है और यही हमारा मजहब है कि दरअसल दज्जाल शैतान का इसमें आज़म है, जो बमकाबल खुदा ताला के इसमें आज़म के लिए जो अल्लाहुल हय्युल क़य्यूम है, इस तहकीक से ज़ाहिर है। जहाँ पर भी अपनी तहकीक पेश कर रहा है, कहता है इस तहकीक से ज़ाहिर है कि ना हकीकी तौर पर दज्जाल यहूद को कह सकते हैं, ना नसारा के पादरियों को, ना किसी और कौम को, क्योंकि ये सब खुदा के आजिज़ बंदे हैं। खुदा ने अपने मुकाबले पर उनको कुछ इख्तियार नहीं दिया, बस किसी तरह इनका नाम दज्जाल नहीं हो सकता। जब मिर्जा कादियानी के नजदीक उसके अपने बकौल दज्जाल शैतान का इसमें आज़म है, इंसान नहीं है, ना यहूदी है, ना नसारा है, ना कोई पादरी है, नहीं, ये दज्जाल नहीं है, बल्कि दज्जाल तो शैतान का इसमें आज़म है। तो फिर जो उसने पहली इतनी सारी बहस की है ज़ाला वहां में 3-4 सफ़े काले किए, उनका रद्द तो खुद कर दिया उसने। जो हदीसें दो पेश की कि 100 साल के अंदर अंदर जितने भी लोग हैं वो सब मौत का शिकार हो जाएंगे। तो लोगों की सिफ्त से, इंसानों से जब खुद निकाल दिया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने उसको शैतान का इसमें आज़म करार दे करके, तो फिर उसकी ये बहस के इब्ने आदम होगा, 100 साल के अंदर वो मारा जाना चाहिए, ना इब्ने सयाद है, ना तमीमदारी वाला है, तो ये बहस तो बातिल ठहर गई, खुद ब खुद ही फजूल करार पाई। आगे बढ़ते हैं। तो नाज़रीन, इसका दूसरा जवाब ये है कि अगर तमीमदारी रजी अल्लाह तआला वाली हदीस को मद्देनजर रखा जाए तो दज्जाल को सही मुस्लिम की 100 साल वाली हदीस से खुद ब खुद ही इस्तिस्ना मिल जाता है, क्योंकि दज्जाल के बारे में तमाम हदीस से साबित है कि दज्जाल के ज़हूर से कबल क़यामत नहीं आ सकती, क्योंकि दज्जाल का ज़हूर अलामात क़यामत में से है, जिससे वाज़ेह होता है कि इसका ज़हूर हर हाल में होगा। और तमीमदारी रजी अल्लाह तआला वाली रवायत से इन कामों के बारे में भी रहनुमाई मिलती है जो दज्जाल अपने ज़हूर के बाद करेगा। अब दज्जाल की मौत का शुबा सिर्फ और सिर्फ 100 साल वाली हदीस में मौजूद लफ्ज़ तमाम से पैदा होता है, क्योंकि सवाल पैदा होगा कि हदीस में लफ्ज़ तमाम लोग जो उस वक्त जिंदा थे 100 साल के अंदर उन पर मौत वारद होने का जिक्र है, तो दज्जाल को इन तमाम से क्यों कर इस्तिस्ना हासिल है? तो आइए ये बात भी आपको कुरान करीम से ही समझाता हूँ। कुरान करीम का भी यह सलूब है कि अगर किसी चीज के लिए लफ्ज तमाम का लफ्ज आया है और दूसरी जगह इस चीज को दूसरों से अलग बयान किया गया है और उसके बरअक्स बयान किया गया है, तो उसे इस लफ्ज तमाम से अलग ही समझा जाएगा। मसलन अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लुवकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनतुन व इलैना तुरजऊन। सूरह अल-अंबिया की आयत। फरमाया तमाम नफ्स जानदार मौत का जायका चखने वाले हैं, तमाम नफ्स मौत का जायका चखने वाले हैं। जबकि एक और मकाम पर रब्बे कायनात ने अपनी जात के लिए भी नफ्स का लफ्ज इस्तेमाल किया। फरमाया ला यत्तखिज़िल मुमिनूना अल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीना व मन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुकातन व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाह नफ़सहू युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़सहू। अपनी जात के लिए अल्लाह ताला ने नफ्स का लफ्ज इस्तेमाल किया। व इलल्लाहिल मसीर, तर्जमा किया सुनिए। मोमिनों को चाहिए
کہ ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए, और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह ताला की किसी हमायत में नहीं, मगर ये कि उनके शर से किस तरह बचाव मकसूद हो। और अल्लाह ताला खुद तुम्हें अपने नफ्स से डरा रहा है और अल्लाह ताला ही की तरफ लौट कर जाना है। इसी तरह सूरह आल इमरान से हट के सूरह अल माइदा में भी रब कायनात ने अपनी जात के लिए नफ्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अब ये सवाल पैदा होता है कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, तमाम नफूस ने, तमाम जानदारों ने मौत का जायका चखना है, तो क्या अल्लाह ताला ने भी माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मौत का जायका चखना है? नहीं। फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व रब्बका, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। वाज़ेह तौर पे फरमा दिया कि हर चीज फानी है, कुल्लु मन अलैहा फान। फिर अल्लाह ताला के बारे में फरमाया कि सिर्फ और सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल का नाम बाकी रहेगा और कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह ताला ने अपनी जात को इस्तिस्ना दे दिया लफ्ज़ तमाम से। बिल्कुल इसी तरह जैसे अल्लाह ताला ने कुल्लु नफ्सिन से इस्तिस्ना दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले दज्जाल के खरूज की खबर दे करके 100 साल के अंदर अंदर मौत आने वाली अहादीस से इस्तिस्ना दे दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह रब्बे कायनात ने फरमाया है आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए, लेकिन पहले बताता चलूं, सूरह अल अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानता रतकन फफतकनाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफला युमिनून। क्या काफिर लोगों ने ये नहीं देखा क्या आसमान और जमीन बहम मिले जुले थे, फिर हमने उन्हें जुदा किया और हर जिंदा चीज को कुल्लो शैइन तमाम चीजों को, हय्यिन जो जिंदा हैं, अफला युमिनून पानी से पैदा किया, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफला युमिनून, लेकिन इसके बावजूद वो ईमान नहीं लाते। वाज़ेह तौर पे फरमाया कि हमने पानी से हर चीज को पैदा किया, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया तो फरमाया इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन, जबकि आपके रब ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूँ, मिट्टी से आदम को पैदा करने वाला हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कुल्ला शैइन में आदम अलैहिस्सलाम आते थे या नहीं आते थे? फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और मकाम पे सूरह अल-अराफ में फरमाया काला मा मना का अल्लाह तस्जुदू इज़ अमरतुका काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तैनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। हक ताला ने फरमाया तू जो सजदा नहीं करता, शैतान का, इब्लीस का जिक्र करते हुए कि तू जो सजदा नहीं करता तो तुझको इससे कौन सा अमर माने है, जबकि मैं तुझको हुक्म दे चुका। कहने लगा मैं इससे बेहतर हूँ, आपने मुझको आग से पैदा किया है। इब्लीस को किससे पैदा किया गया? आग से। जबकि अल्लाह ताला तो सूरह अल-अंबिया में फरमाता है कुल्ल शैइन हय्यिन वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन, कि हर जिंदा चीज को मैंने पानी से पैदा किया है। यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि कोई मुल्हद दहरिया आपके सामने कुरान करीम का ये तज़ाद पेश करना शुरू कर दे। कादियानी भी तो मुल्हद है, कादियानियत भी तो अलहाद की माँ है। लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि लफ्ज़ कुल्ला से अल्लाह ताला ने अलग बयान करके आदम की तख्लीक का जिक्र करके इब्लीस का आग से पैदा होने का जिक्र करके उनको इस्तिस्ना दे दिया इस बात से। और इस तरह आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह उन दो अहादीस से दज्जाल को भी इस्तिस्ना हासिल हो गया। फिर आगे मिर्जा कादियानी लिखता है
हदीस मज़कूरा बाला में इस दज्जाल ने खुदाई का दावा नहीं किया, बल्कि फिक्रा अयूश का अयूजन ली साफ दलालत कर रहा है कि दज्जाल को खुदा ताला के वजूद का इकरार है, और हदीसों में कोई ऐसा लफ्ज पाया नहीं जाता जिससे मालूम हो कि जसासा वाला दज्जाल अपने आखिरी ज़हूर के वक़्त में खालिकुस समावात वल अर्ज़ होने का दावा करेगा। हज़रात किरामी कदर, दीगर अहादीस नबविया से वाज़ेह होता है कि फितना दज्जाल एक बहुत बड़ी आजमाइश है जिसका ज़हूर कुर्ब क़यामत होगा, और वो लोगों के सामने दावा खुदाई करेगा। कमजोर ईमान के लोग उसे खुदा समझ बैठेंगे। अब ये दावा खुदाई तो उसने कुर्ब क़यामत करना है, और नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने उसे ही दज्जाल करार दे दिया है, तो इस पर यह एतराज करना ही बिल्कुल फजूल है कि तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला वाली हदीस में दज्जाल ने अपने दावा खुदाई के बारे में क्यों नहीं बताया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया कि वो दावा खुदाई करेगा, और ये बात सहीहुल असनाद हदीस मुबारक से साबित भी है, तो फिर मिर्जा कादियानी के ऐसे एतराज़ात को दीन इस्लाम के असल हुलिये को तब्दील करने की नापाक जसारत करार ना दे तो और क्या कहें। हज़रात किरामी कदर, मिर्जा कादियानी सही मुस्लिम की हदीस में बयान करदा दज्जाल की अलामत के उसकी पेशानी पर काफ फा रा लिखा हुआ होगा, उस पर एतराज करते हुए लिखता है कि इमाम मुस्लिम साहब तो ये लिखते हैं कि दज्जाल महूद की पेशानी पर काफ फा रा लिखा हुआ होगा, मगर ये दज्जाल तो उन्हीं की हदीस की रूह से मुशर्रफ इस्लाम हो गया। फिर मुस्लिम साहब लिखते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तनस देखे सही इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह पर। फिर मुस्लिम साहब लिखते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दज्जाल महूद बादल की तरह जिसके पीछे हवा होती है मशरक मगरब में फैल जाएगा, मगर ये दज्जाल इब्न सयाद उसका ब्रैकेट में लिखता है, तो जब मक्का से मदीना की तरफ गया तो अभी सईद से कुछ ज्यादा नहीं चल सका, जैसा कि मुस्लिम के हदीस से जाहिर है। ऐसा ही किसी ने इसकी पेशानी पर काफ फारा लिखा हुआ नहीं देखा। अगर इब्ने सयाद की पेशानी पर काफ फारा लिखा हुआ होता तो हज़रत उमर को उसके कत्ल करने से मना क्यों करते, और क्यों फरमाते कि हमें उसके हाल में अभी इश्तबा है। अगर यही दज्जाल महूद है तो उसका साहब ईसा इब्न मरयम है जो उसे कत्ल करेगा, हम उसको कत्ल नहीं कर सकते। ताज्जुब तो ये है कि अगर इब्न सयाद की पेशानी पर काफ फारा लिखा हुआ नहीं था तो उस पर शक करने की क्या वजह थी, और अगर लिखा हुआ था तो फिर इसको दज्जाल महूद यकीन ना करने का क्या सबब। आप देखें हदीस में किस तरीके से शकूक व शुबात पैदा किए जा रहे हैं, इंशाल्लाह इसका भी जवाब देता हूँ। और लोगों के जहनों में इश्कालात हदीस नबविया के बारे में फैलाए जा रहे हैं। कहता है क्यों शक और तरद्दुद में रहे, क्यों ये फरमाया कि शायद यही दज्जाल महूद हो, और या शायद कोई और हो, गुमान किया जाता है शायद उस वक्त काफारा उसके पेशानी पर नहीं होगा। मैं सख्त मुतअज्जब और हैरान हूँ कि अगर सचमुच दज्जाल महूद आखिरी जमाना में पैदा होना था, लफ्ज़ पैदा होने पर भी गौर कीजिए मिर्जा कादियानी क्या लिख रहा है, पैदा होना था यानी इस जमाना में कि जब मसीह इब्न मरयम ही आसमान से उतरे तो फिर कबल अज वक्त ये शकूक व शुबात पैदा ही क्यों हुए। और ज्यादातर अजीब ये कि इब्न सयाद ने ऐसा काम भी नहीं दिखाया कि जो दज्जाल महूद की निशानियों में से समझा जाता, यानी ये कि बहिश्त और दोज़ख का साथ होना, खजानों का पीछे पीछे चलना और मुर्दों का जिंदा करना और अपने हुक्म से मींह को बरसाना और खेतों का उगाना और 70 बाग के गधे पर सवार होना। यह तहरीर मिर्जा कादियानी ने रूहानी खज़ान 3 के सफ़ा 212 और 213 पर लिखी है। हज़रात गिरामी कदर, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पैदा किए गए शुबहात का रद्द करने से पहले आपको इस बात से आगाह करना चाहूँगा कि किस तरह से इन अहादीस में तनाक़ुज़ ज़ाहिर करके उसने लोगों को अहादीस नबविया से मुतनफ़्फ़िर करने की नापाक जसारत की है मिर्जा कादियानी ने।
क्योंकि यहूद व नसारा की शुरू से ही ये कोशिश रही कि किसी तरह दीन इस्लाम के सरूह को मसक करके लोगों को दीन इस्लाम से मुतनफ़र किया जाए, और इस सिलसिला में उनका सबसे बड़ा हथियार अहादीस नबविया में शकूक व शुबहात पैदा करना रहा है। और ये भी हकीकत है कि कुरान करीम के साथ साथ अहादीस नबविया ही इस्लामी तालीमात का असल माखज़ हैं। अगर अहादीस नबविया को दीन इस्लाम से निकाल दिया जाए तो इस्लाम का मुकम्मल हुलिया ही तब्दील हो जाए। और मिर्ज़ा कादियानी भी तो अंग्रेज़ का लगाया हुआ खुद काश्ता पौधा था, जिसका उसे खुद भी एतराफ़ है। तो नाज़रीन, मिर्ज़ा कादियानी लिखता है आगे, अब बड़ी मुश्किल ये दरपेश आती है कि अगर हम बुखारी और मुस्लिम की हदीसों को सही समझें जो दज्जाल को आखिरी ज़माना में उतार रही हैं, तो ये हदीसें उनको मौजू ठहराती हैं, और अगर इन हदीसों को सही करार दें तो फिर उनका मौजू होना मानना पड़ता है। यानी हदीसों में तनाक़ुज़ पैदा करके तो लोगों के दरमियान धोखाधड़ी, लोगों के दरमियान अहादीस से नफरत पैदा की जा रही है। और फिर आगे लिखता है, इनका मौजू होना मानना पड़ता है। अगर ये मुतआरज़ और मुतनाक़िज़ हदीसें सही हैन में ना होती, सिर्फ दूसरी सहीहों में होती, तो शायद हम इन दोनों किताबों को ज़्यादातर पास खातिर करके इन दूसरी हदीसों को मौजू करार देते। मगर अब मुश्किल तो ये आ पड़ी कि इन्हीं दोनों किताबों में ये दोनों किस्म की हदीसें मौजूद हैं। अब जब हम इन दोनों किस्म की हदीसों पर नजर डालकर गर्दाबे हैरत में पड़ जाते हैं कि किस को सही समझे और किस को गैर सही, तब अकल खुदादाद हमको ये तरीके फैसला का बताती है कि जिन अहादीस पर अकल और शरा का कुछ एतराज नहीं, उन्हीं को सही समझना चाहिए। तो नाज़रीन, आइए अब इस धोखों को, इस फराड को, मिर्ज़ा कादियानी के इन शुबहात को जो उसने पैदा किए हैं, उनका जवाब देता हूँ आपके सामने। मिर्ज़ा कादियानी अहादीस नबविया को मुतआरिज़ और मुनाक़िज़ कैसे करार देते हुए आपके सामने पेश कर रहा है और लोगों के दिलों में शकूक व शुबहात पैदा कर रहा है। तो नाज़रीन, अहादीस को समझने का मेयार उनकी असनाद और वाक़यात और कुरान करीम, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर हदीस की सनद सही है तो उसके मतन का भी जायजा दिया जाएगा। लेकिन एक दूसरे से कोई भी सही हदीस फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो कुरान करीम के मुखालिफ और मुआरिज है, और ना ही किसी आपस में मुनाक़िज़ और मुआरिज है मिर्ज़ा कादियानी की तहरीरों की तरह। तो हज़रात गिरामी क़दर, मिर्ज़ा कादियानी ने दज्जाल के बारे में जो बातें की हैं, तो उस हवाले से ये बात जहन में रखिए कि दज्जाल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यक वक़्त जो है वो इल्म नहीं पहुंचाया गया। बतदरीज दज्जाल के बारे में मालूमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज़िल होंगी, जैसे कुरान करीम बतदरीज नाज़िल हुआ, क्योंकि ये भी दीन का हिस्सा है। दीन के अहकामात यक वक़्त नहीं उतारे गए, बतदरीज नाज़िल हुए हैं। तो दज्जाल के बारे में भी अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतदरीज बताया है, ना कि एक ही बार में सब कुछ बता दिया। ये इस नुक्ते को, इस पॉइंट को ज़हन में रखिए। अगर ये नुक्ता ज़हन में आ गया, समझ में आ गया कि एक ही बार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरे का पूरा दीन नाज़िल नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम भी 23 साल के अरसे में नाज़िल किया है, 23 साल के अरसे में। तो दीन के जितने भी अहकामात हैं वो बतदरीज उनका नज़ूल हुआ है, एक ही बार में नहीं। तो इसलिए इब्तिदा में कही गई बात को, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनसूख कर दिया, उसको बुनियाद बना करके लोगों के सामने ये साबित करने की कोशिश करना कि अहादीस में तनाक़ुज़ है और वो मारज़ हैं, ये परले दर्जे बदतरीन और बदतीनत शख्स का ही काम हो सकता है, किसी मोमिन और मुसलमान का नहीं। और सुनिए, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने जो बात लिखी है कि लेकिन दूसरी हदीसों से ज़ाहिर है कि बिल आखिर इस पर यकीन किया गया
यही दज्जाल माहूद है। इब्ने सयाद के बारे में ये बात मिर्जा कादियानी ने लिखी। जाइए, पूरी कादियानियत पर चैलेंज है, बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हदीस में इस बात पर यकीन किया कि इब्ने सयाद ही दज्जाल है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ शुबे का इज़हार किया। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्ने सयाद के बारे में ये बात कही कि मैं इसको कत्ल करना चाहता हूं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मिर्जा कादियानी खुद बयान कर चुका, जो मैं पहले पढ़ के सुना चुका हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तो ये दज्जाल है तो इसका साहब ईसा इब्ने मरयम है, वही इसे कत्ल करेगा। अगर ये दज्जाल नहीं तो तुझे इसे कत्ल करने का कोई फायदा नहीं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ शुबे का इज़हार किया, लेकिन मिर्जा कादियानी यहां पर क्या कह रहा है, लेकिन दूसरी हदीसों से जाहिर है कि बिल आकर इस पर यकीन किया गया कि यही दज्जाल माहूद है। मैं पूछना चाहता हूं पूरी मिर्जाइयत से, वो हदीसें तो पेश करें हमारे सामने जिनके अंदर ये यकीन किया गया कि वही दज्जाल माहूद है, या फिर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान अजीम लगाया अपनी खबीस आदत के मुताबिक। हजरात ग्रामी कदर, अब आते हैं आगे। इब्ने सयाद दज्जाल है, जिसका जवाब दे दिया कि वो दज्जाल नहीं है, बल्कि उस पर सिर्फ शुबह का इज़हार किया गया। दूसरा शुबह जो पेश किया है वो ये है कि इब्ने सयाद के माथे पर काफ फारा नहीं लिखा था, तो उसे दज्जाल क्यों समझ लिया गया। इस ज़िमन में गुजारिश ये है कि जब दज्जाल कुर्बे क़यामत ज़ाहिर होगा, ये सारी अलामात तो उस वक्त ज़ाहिर होनी है, पहले तो ज़ाहिर नहीं होनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो नहीं फरमाया कि अब ज़ाहिर होनी है, बल्कि इन अलामात का जिक्र यही किया, जिस हदीस में भी किया वहीं पर किया कि जब नबी जो दज्जाल है, जब दज्जाल है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नहीं बल्कि क़यामत से पहले ज़ाहिर होगा, तो तब ये अलामात ज़ाहिर होंगी। अगर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये अलामात ज़ाहिर होनी है, किसी हदीस में ये बयान हुआ है, तो कोई भी मिर्ज़ाई इस बात का सबूत दे, मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन कोई मिर्ज़ाई इस पे बात नहीं करेगा, ना सबूत दे सकेगा, ना ही किसी में इतनी हिम्मत है, ना ताकत है। आगे बढ़ते हैं। इस हवाले से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी क्या लिखता है, जो शुबह और शक जो उसने पैदा किया। एक और बात जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी इस तहरीर में लिखी, कहता है, मैं सख्त मुताज्जब और हैरान हूं कि अगर सचमुच दज्जाल माहूद आखिरी जमाना में पैदा होना था, यानी इस जमाना में कि जब मसीह इब्ने मरयम ही आसमान से उतरेंगे, तो फिर कबल वक्त ये शकूक व शुबहात पैदा ही क्यों हुए। ये बात मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखी कि कबल वक्त ये शकूक व शुबहात क्यों पैदा हुए। अगर जब ईसा इब्ने मरयम ने ही नाज़िल होना था तो उसी वक्त उतरना था, तो इसका जवाब जनाब मैं देता हूँ। मिर्जा कादियानी ने ये बात लिख करके बहुत बड़ा धोखा देने की कोशिश की है कि दज्जाल के आखिरी जमाना में पैदा होना लिखा है। जाइए, पूरी मिर्जाइयत को चैलेंज है। मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर याहिया साहब भी हमारी स्ट्रीम पर आए हैं। मैं अपने लेक्चर के इख्तिताम के बाद ज़िया भाई से कहूंगा कि अगर वो स्ट्रीम में शामिल होना चाहते हैं तो आए और मुझे सबूत दे इस बात का कि किस हदीस में ये बात लिखी है जनाब कि दज्जाल ने क़यामत से पहले पैदा होना है। अगर किसी हदीस में नहीं लिखा तो मिर्जा कादियानी ने ये धोखा क्यों दिया, ये झूठ क्यों बोला। उसने निकलना, उसका खरूज होना, उसका ज़हूर होना है, उसने पैदा नहीं होना क़यामत से पहले। जबकि मिर्जा कादियानी तो ने ये लिखा कि उसने पैदा होना है। और सुनिए, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ये जो धोखा दिया उसका आपके सामने जवाब दिया है। और आगे बढ़ते हैं कि सहीहैन के इन अहादीस में कोई तारिज़ या तनाक़ुज़ नहीं है, बल्कि बात सिर्फ इतनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल के बारे में बतदरीज इल्म दिया गया, जैसा कि मैंने पहले बताया था। जब तक दज्जाल के बारे में अल्लाह ताला की तरफ से
वाज़े अहकामात नहीं नाज़िल हुए, वाज़े बात नहीं बताई गई, उस वक्त तक इब्न सियाद पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल पर शुबा किया था। जब तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु वाला वाक़या रूनुमा हुआ तो उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से वाज़े लफ्जों में बता दिया कि वही हकीकी दज्जाल है जो कुर्बे क़यामत ज़ाहिर होगा। मोहतरम कारीन, हजरात इकरामी कदर, अब एक और शुबे का इजाला करता चलूं, जो ये है कि अगर दज्जाल के माथे पर काफ फा रा लिखा होगा तो लोग उस पर ईमान क्यों कर लाएंगे? इसका सादा सा जवाब दो तरह से देता हूं। एक तो ये है कि आजकल लोग सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं। क्या सिगरेट की डब्बी के ऊपर नहीं लिखा होता ये सेहत के लिए मुज़र है, इससे होंठों का कैंसर हो सकता है? इसके बावजूद लोग सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते? क्या हजारों का दयानियों को इस बात का इल्म नहीं है? मिर्जा गुलाम कादियानी ने कदम कदम पर झूठ बोले हैं, कदम कदम पर खयानतें की हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोला है, बददयांतियां की हैं। क्या कादियानियों को नहीं पता कि किताब के लिए लिया जाने वाला चंदा मिर्जा कादियानी ने अपनी जाती जरूरियात पर खर्च किया? खोलिए मकतूबात अहमद। और क्या कादियानियों को नहीं पता कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है वाज़े तौर पे कि नबी खाइन नहीं होता? ये तो हो ही नहीं सकता कि नबी खाइन हो जाए, खयानत करे, मुमकिन ही नहीं है। जबकि मिर्जा कादियानी ने खुद खयानत का एतराफ कर रहा है, अपनी अमानत में खयानत का। इसके बावजूद बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, जो स्कॉलर समझे जाने वाले लोग जो हैं, कादियानी हैं या नहीं है? तो अगर मिर्जा कादियानी को इमाम महदी और मसीह मऊद और नबी और माज़अल्लाह तमाम अंबिया से अफजल मान सकते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो क्या वो दज्जाल को उसकी रबूबियत पर काफ फा रा लिखा होने के बावजूद पर ईमान नहीं ले आएंगे? हम तो कादियानी को अभी दज्जाल के पैरोकार मानते हैं, दज्जाल असगर है, वो दज्जाल अकबर होगा। तो हजरात गिरामी कदर, मेरे ख्याल में आज की स्ट्रीम इसी पर बस करता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह अल हक मुबासा दिल्ली के अंदर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने दज्जाल के बारे में कुछ बातें की हैं। उनके उस तहरीर से मैंने 5 नकात नोट किए हैं। उन 5 नुकात का इंशाल्लाह तफसीली जवाब अभी दे देता हूँ अगर कहते हैं, क्योंकि तहरीर थोड़ी सी लंबी है, तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे अगर मैंने उनका जवाब देना शुरू किया। अगर तो ज़िया भाई और दीगर साथी कहते हैं तो मैं अभी जवाब दे देता हूँ, नहीं तो आइंदा स्ट्रीम में रख लेते हैं। क्या प्रोग्राम है ज़िया भाई, बता दीजिए। जी अहबाब, आप अगर कमेंट के जरिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया जी ज़िया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। मैंने लिंक दिया, किसी साथी ने को सवाल करना हो, किसी कादियानी ने को सवाल करना हो तो आ सकता है। हकीम जाजा आया हुआ था, कह रहा था कि मुझसे हज़रत ईसा, मुझे कहता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान से साबित कर दो। ऐसे आकर ऑर्डर दे रहा है हमें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान से साबित कर दो। हमें हमारी कौन सी भाई हम आपको इस पे स्ट्रीम रखें इंशाल्लाह। ये 1400 साल बाद नया अकीदा गढ़ लिया, साबित उन्होंने करना है। हमारा तो 1400 साल से हम तो इसी अकीदे पे, इस पर सबसे बड़ा सबूत मिर्जा गुलाम कादियानी पूरे 53 साल तक इसी अकीदे पर। तो वैसे भी हमारी कोई वेलने में बात नहीं आई हुई। हमने अल्हम्दुलिल्लाह किसी कज़ाब को नहीं माना हुआ कि हमें सर पीट रहे 24 घंटे, हाय सच्चा कैसे साबित करें। ये तो वेलने में बात तुम्हारी आई हुई है, तुम्हारी सिर पीड़ बना हुआ मिर्जा कादिर, तुम लोगों ने करना है साबित जो भी करना है। हमारे अंगूठे को भी ठंड नहीं है भाई, आ जाते हो ऑर्डर मारने, ये साबित करो वो साबित करो। हमें कोई जरूरत नहीं है आप कज़ाबों को कुछ साबित करने की। आपने मिर्जे को सच्चा साबित करना है, आप करें अपने दावों को, अपने अकीदों को साबित। आ जाते हैं यहाँ पे ऑर्डर ठोकने। वैसे भी मिर्जे गुलाम कादियानी का मुझे आज तक मरज़ियों ने बताया नहीं कि इसका तल्लुक क्या है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। 125 साल से रोला डाला हुआ है। जिस मरज़ी से पूछ लो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की याद साबित करो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पे, आसमान का लफ्ज़ दिखाओ। इसका मिर्जे से क्या लेना देना है? मिर्जे से इसका क्या लेना देना है? ये धोखा है लोगों को देने के लिए बहुत बड़ा।
باقی اس کے باوجود ضیاء بھائی اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے میں دین کا ایک ادنا طالب علم صرف قرآن کریم سے ہی حیات عیسیٰ علیہ السلام ثابت کروں گا. لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کو تم مانتے کب ہو؟ تم تو مرزا قادیانی کو مانتے ہو، کیونکہ تمہارے نزدیک تو قرآن کریم اب وہی ہے جو اس کی تفسیر، تشریح، ترجمہ جو مرزا قادیانی نے کیا وہی قابل قبول ہے. تو تمہارے ساتھ قرآن کریم سے بات کیسے ہو؟ بتائیں ذرا. ابھی میں نے کتنی حدیثیں بیان کی ہیں جن حدیثوں کے اندر یہ اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی اور دجل اور فریب سے کام لیا ہے. ابھی تو آگے بہت سارے اس کے دھوکے سامنے آنے ہیں. اور ایک اور بات ضیاء بھائی بتا دوں جو آگے آنی ہے چل کے، میں نے سٹارٹ اس سے نہیں لیا. 20 موقف اپنائے ہیں دجال کے موضوع پر مرزا قادیانی نے، 20 موقف، اور 21واں موقف جو ہے وہ بشیر الدین محمود نے اپنایا ہے. آپ اس بات کو یہ ساری چیزیں آگے بیان کرنی ہیں. آپ اس بات کو چھوڑیں، آپ حیات عیسیٰ ثابت کریں. جس موضوع پہ سٹریم ہے اس پہ بات کرتا آتا میدان میں، لنک دیا آ جائے، ابھی بھی آ جائے، حاضر ہوں میں باوجود بیماری اور پریشانی کے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود میں حاضر ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. چلیں حکیم یحییٰ صاحب، آپ کا یہی شوق ہے تو یہ عبید اللہ لطیف بھائی تو شاید ون سائیڈڈ ہی کر لیں آپ سے یہ ڈبیٹ. مجھ سے کرنی ہے تو میری شرط وہی پرانی ہے. آپ نے یہ کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات قرآن سے ثابت کرنی ہے، حیات عیسیٰ پر مناظرے کے لیے تیار ہوں. تو آپ اس پہ ڈبیٹ کرنی ہے تو میری ساتھ میں شرط ہے، یہ آپ کا ٹاپک ہو گیا، ساتھ میں ایک ٹاپک میرا بھی ہوگا. ایک آپ اپنے ٹاپک پہ بات کر لیں گے، دوسرا ٹاپک میرا. اگر ہے ہمت منظور ہے تو آ جاؤ. یار یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ادھر یار آ جاؤ، معافی مانگو. اور کہتا ہے تم معافی مانگو. کمنٹ کرنے کے بجائے ہمت کریں، سٹریم میں آ جائیں، ہم منتظر ہیں آپ کے جناب. ہم آپ کو آپ کی طرح نہیں کہ جو بندہ کیا فوری طور پہ کبھی مائک بند کر دیا کبھی اتارتے، یہ کام نہیں کریں گے. لوگوں کو بھی بتا دیں آ کے کہ ضیاء رسول نے کس بات کی معافی مانگنی ہے حضرت صاحب آپ سے. جناب مہان ڈاکٹر صاحب کس چیز کی معافی منگوانا چاہتے ہیں؟ ٹانگیں آپ کی ویسے کام جاتی ہیں اور آپ اب کہہ رہے ہیں معافی مانگو. اس کو پتا ہے ضیاء رسول کا تو جوتی بھی معافی نہیں مانگنے والی، تو بس یہ بہانا صحیح ہے. لیکن چلو کوئی ویلڈ ریزن ہوگی، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ایسی کوئی غلط بیانی میں نے کی ہے، یا کوئی آپ کے مرزا صاحب پہ غلط الزام لگایا، یا کوئی گالی دی ہے آپ کو، یا کچھ ایسا ویسا کیا. اگر کوئی ریزنیبل آپ کے پاس کوئی وجہ ہوگی تو میں ضرور اس پہ معذرت کروں گا. آ جائیں، بتا دیں مجھے کس بات کی معافی مانگنی. یہ لنک میں نے دیا ہے کہ ان صاحب آ جائیں، نہیں آئیں گے. چلیں یا کمنٹ میں لکھ دیں کس بات کی معافی مانگنی. کمنٹ کر دو کہ صاحب کیڑی گل دی معافی منگوانا چاہتے ہو. دیکھ لیتے ہیں بھائی اگر کوئی یار. جی کانے دجال دیاں گستاخیاں، جس بندے نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دیاں گستاخیاں کیتیاں نے اودے کولوں معافی منگو. لو جی ہاسا آ گیا جی. او بیٹے منہ ڈاکٹر جی یہ سب تواڈے تو توقع نہیں سی ہے. کم از کم اس بات کی توقع نہیں سی ہے. میں نے کہا تھا نا یہ بھاگنے کے بندے نوں اسی اپنے ایک مومن مسلمان دے پیراں دے قدماں دے خراکی پیشاب دی جھگ دے برابر نہیں سمجھتے. تو کہنا اودی گستاخی دی معافی مانگ لو. شرم کر یار کچھ تھوڑی بہت. ہر کتے کمینے کے ساتھ حضرت نہ لگایا کرو. حکیم یحییٰ صاحب پہلے بھی کئی بار آپ کو سمجھایا ہے. آپ جان بوجھ کے کہتے ہیں، آپ کو نا اصل میں کھانا نہیں ہضم ہوتا جب تک مرزے غلام قادیانی کی درگت نہ بنوا لے. یقین کریں ان کو نیند نہیں آتی. وہ اس کے یقین کریں اس کی قبر پہ پیشاب نہ کریں. ہم جا کے کہتے ہو جی اس کی معافی مانگو. آگے بڑے منہ تیرے معافی ویگ. تمہارے بارے میں نے تمہیں کوئی گالی دی ہوتی، تمہیں برا بھلا کہا ہوتا کہیں تو یقین کرے میں تم سے معذرت کر لیتا. اس کانے دجال یہ شکل اس کی دیکھی تم نے؟ کوئی عقل نو ہاتھ مارو حکیم صاحب. جویں جویں بڈھے ہوندے جاندے ہو عقل تو پیدل ہوندے جاندے ہو.
मिर्जा गुलाम जिस कादियानी बंदे ने वो उसी कज़ाब तो जाल मन ले यार। बगैर ड्यूटी के सफर करता था। मुझे लगता है तुम बगैर दिमाग के आजकल चल रहे हो। तो ख्याल करो, डिमांड बंदा वो करे जो मानने वाली हो। दोबारा ज़िया ऐसे भाई जाना हैरानी इस बात की है, ज़िया भाई गुस्ताखी होगी। हैरानी इस बात की है कि उस बंदे की माफ़ी की बात कर रहा है जिस पर हमारा इख्तलाफ है, अच्छा जिसको हम वैसे कज़ाब बच्चे का तजाल, कॉन्फिडेंस बेईमान, फ्राडिया, धोखेबाज, बददियानत सब कुछ समझते हैं। बच्चे का ठीक है, कॉन्फिडेंस अब चेक कहता करो। है जी आगे कहता उसकी है गुस्ताखी हो हजरत गई है भाई। आगे कहता है हजरत काने मऊद की गुस्ताखी की है तो माफी मांगो। कॉन्फिडेंस चेक करो। हाँ, हकीम ये भी याहिया गल साहब क्या करना ही है। कॉन्फिडेंस पाया सरकार। तो वास्तव देखो यार, अगर किसी साथी का कोई सवाल है, कोई बात है तो करो, बस चलो ये 1 जवाब घंटा दे हो दो। चुका है तो हम इसको अब स्ट्रीम्स को 1 घंटे से ज़्यादा लंबा नहीं किया करेंगे। तो इंशाल्लाह अगर किसी का कोई सवाल होगा नेक्स्ट स्ट्रीम में कर लेगा, तो अब हम इजाज़त चाहते हैं। हकीम साहब आपकी कोई गुस्ताखी, मैंने आपको कभी कोई गाली गलौच बिला वजह की हो या कोई ऐसी बात जिससे आपकी दिल आज़ारी हुई हो सिवाय मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के, इसके बारे में जो कुछ कहा उससे हट के तुम्हारी ज़ात के बारे में कुछ कहा हो तो मैं तुमसे माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के बारे में मेरा कुत्ता भी माज़रत नहीं करेगा। ये मेरी बात ज़हन में, खाने में, हर खाने में बिठा लो। किसी भी इंसान से, मैं कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मरज़ई हो, कोई भी हो, अगर उसकी ज़ातियात पे मैंने कोई बात कर दी हो और उसको तकलीफ़ हुई, उस पर मैं माज़रत कर लूँगा। मिर्ज़े का दोबारा भूल के भी नाम ना लेना। लग गई ना समझ? आज मैंने थोड़ा-सा हाथ हल्का रखा है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आए हो। लेकिन दोबारा ये वाली डिमांड रखी ना तो मैं थोड़ा-सा पुराने वाला सख्त हाथ रखूँगा। फिर आपकी बैठे वहाँ आवाज़ भी काँप रही होती है और टाँगें भी नीचे से काँप रही होती है। आ गए बड़े डिबेटर मरज़ई में। टांगे नहीं ज़िया भाई, कांपे टांग रही होती हैं। हाँ। और यार वो ते हुरमत बीबी वास्ते रहमत नहीं बन सकिया। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਅੱਜ और नहीं ਸਕਰੀਨ गया ਜਾਓ। उससे नुक्ता नहीं पाड़ा ज़िया भुल भाई गया। एक मिनट सिर्फ, ज़िया भाई सिर्फ एक मिनट, जरा कमेंट हाईलाइट करा जी डॉक्टर जाइए का। डॉक्टर जाइए का कमेंट हाईलाइट करना लोगों साथियों के सामने। लो जी, कहता है जी जिसको रहमत बनाकर भेजा गया तुम लोग गुस्ताखियां करो और हम चुप रहें। डॉक्टर जाइया साहब, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਲਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਟਲ ਗਿਆ ਤੌਬਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੌਬਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਟਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਟਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਅਜ਼ਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਰਹਿਮਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੌਬਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। हकीम याहिया वालों आपको चिट्टा जवाब है। यार मरज़इयों को नहीं सही है, कॉन्फिडेंस चेक हकीकत करो वही यार। की तहरीर है, ਸਕੈਨ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਤੌਬਾ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਖੀਰ ਚ ਪੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫਿਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਤਖੀਰ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕਲਮ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕਲਮੀ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਸੇ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੌਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਤੌਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਬ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੌਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਵੈਸੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਬਤੌਰੇ ਅਜ਼ਾਬ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਿ ਖਾਮਦ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਬਦਕਾਰ ਹੋਵੇ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਧਰ ਆ, ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ अच्छा, ਸਮਝਾ ਨਾ। ये मरज़इयों ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਇਸ मरज़इयों ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, की ਮਿਰਜ਼ਾ का मरज़इयों का ये जी। रहमत चेक करें जी। सारे लोग मरज़इयों को जो रहमत मिली है, ये उस रहमत पे बात ही नहीं करते। ये हकीम याया देख लो, ये उससे सवाल पूछा जा लो रहा है, जी, कहता है एक कुरान से मिनट। साबित करो जो करना है। और मिर्जा रहमत नहीं है तुम्हारी, अभी तो कह रहे हो मिर्जे को रहमत, उस रहमत पे बात ही नहीं लो करते, जी, बात करते नहीं हो मियाँ और मुंह से कह साहब, रहे हो रहमत है। ये केड़ी रहमत है जिस पे बात ही नहीं ज़िया करते तुम भाई, लोग। ज़िया भाई, ज़िया भाई, डॉक्टर याहिया साहब ਅੱਜ ਇਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮੂਰ ਮਨ ਅੱਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤਰੀ ਅੱਲਾ ਸੀ। ਆ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰ, ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ, ਮੁਬਾਸਾ ਕਰ, ਲਾਈਵ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਰ ਮਨ ਅੱਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮੁਫਤਰੀ ਅੱਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੂਲ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ ਦੇ ਸਫਾ 525 ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੀ क्या कि बस जिस पर कोई कलाम नाजल हो, जब तक 3 अलामतें उसमें ना पाई जाएं, उसको खुदा का कलाम कहना अपने तई हलाकत में डालना है। अव्वल वो कलाम कुरान शरीफ से मुखालफ और मुआरज ना हो। असी मिर्जा कादियानी दे इल्हामात दा जायजा लवांगे, आया वो कुरान करीम के खिलाफ ने या कुरान करीम के मुताबिक ने। ठीक है, तू उसनों ममूर मन अल्लाह साबित करें तो मैं मुफ्तरी अल्लाह साबित करांगा। अगर हिम्मत है तो मेरा इस चैलेंज कबूल कर, सिर्फ तेरे वास्ते नहीं बल्कि तुहाडे खुद साख्ता खलीफा जिन्होंने उत्तों वेख के कुरान नहीं ना पढ़ा, होर जिस रब्बी नूं मर्जी लाई, मेरे नाल टाइम तय कर और मेरे नाल लाइव गुफ्तगू कर और मेरा चैलेंज कबूल कर। बाकी इल्जाम तू जिहड़ा कहना ना इल्जामात लाउंदे ने कफारे मक्का भी ये वो, इन्हां गल्लां नूं छड्ड। हुण अगर तू हकीकत दे अंदर इस बात में मनना ते के चैलेंज कबूल कर जेड़ा तू कहना इल्जाम। ज़िया भाई आ जरा स्क्रीन हाईलाइट करो, जरा वड्डी करो, कल्ली मेरी स्क्रीन करा दे ताकि देख लें साथी भी कि मैं इल्जाम लाया या हकीकत मबनी है। आ जरा कढ़िया दे हकीकतुल वही दा सफा मैं कढ़िया बाहर, ये आ देखो लो जनाब, ये आ सफा खुद देख सकते हो, हाईलाइट होया 570 नंबर सफा हकीकतुल वही दा। मैं पढ़ के सुनाना ते सामने जवाब दे। और ये अमर के इल्हाम में ये भी था कि इस औरत का निकाह आसमान पर मेरे साथ पढ़ा गया। ये दुरुस्त है, मगर जैसा कि हम बयान कर चुके हैं, इस निकाह के ज़हूर के लिए जो आसमान पर पढ़ा गया, जो आसमान पर पढ़ा गया, खुदा की तरफ से एक शर्त भी थी जो उसी वक्त शाया की गई थी, और वो ये कि अय्यतुहल मरअ तूबी तूबी फ़इन्नल बला अला आक़िबिक। बस जब उन लोगों ने इस शर्त को पूरा कर दिया तो निकाह फस्ख हो गया या तखीर में पड़ गया। लो जनाब, या सुल्तानुल कलम दा हाल देख लो, फस्ख हो गया या तखीर में पड़ गया। डॉक्टर याहिया साहब इस तहरीर ते मेरे 5 सवाल ने, अगर हिम्मत है तो उन्होंने 5 सवालों के जवाब दें। जो तू कहेगा उस वक्त मैं 5 सवाल पेश करांगा, तो उन्होंने 5 सवालों का तुम इन्नी तहरीर से जवाब देना अगर हिम्मत है। इसी तरह दूसरा चैलेंज जो मैं तेनों दिता है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मामूर मन अल्लाह या मुफ्तरी अल्लाह, ते मेरे नाल जिदों चाहे टाइम तय कर, शरायत तय कर, और असूल मैं तेनों दस दिता है जरा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने रूहानी हुसैन जिल्द 22 दे सफा 525 ते बयान किया, पढ़ के सुनाता। उससे असूल ते मिर्जा कादियानी दे इल्हामात दा जायजा लवांगे कि आया वो कुरान करीम के खिलाफ ने या कुरान करीम के मुखालफ ने। हिम्मत कर, पता लग जाएगा सब नूं कौन इल्जाम लगांदा है ते कौन वाकयातन मुफ्तरी अल्लाह सी ते कौन मामूर मिन अल्लाह सी। मैं इस चीज़ नूं चैलेंज है, हिम्मत कबूल कर, आ जा मैदान। ओ भाई केड़ी गल करना है इस टाइम, जेड़ा मैं चैलेंज दिता ओदा करना मुकाबला। आजा हिम्मत आ ते कबूल कर, इधर आके बता दे कौन डॉक्टर सा साहब ये मिर्जा तेनू पढ़ा ही है, नहीं, मिर्जे की तहरीर पढ़ो तो जेड़ा कहता भी है मरजाई मजाक उड़ा मरबी रहे मेरा हैं। सुन रहा उसने चैलेंज है। मिर्जे कोई तहरीर पढ़ी है, कह रहा है मजाक उड़ा रहे हैं।
और मिर्जे तुम्हारी जिसको रहमत अभी कह रहे थे उसकी किताब की तहरीर मिनोअन पड़ी है, तुम कह रहे हो मजाक उड़ा रहे हो। ज़िया भाई तुसी समझो वो कह की रहा है कि कुफारे मक्का भी कुरान पाक की आयत का मजाक उड़ाया करते थे, यानी मिर्जे दी तहरीर इन्हां दे नजदीक कुरान पाक दी मनंदे, लेकिन ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ। आओ कुरान करीम दी केड़ी आयत ते कुरान करीम दी ते मेरे नाल गल करनी, मैं ते यार दसो तुहाडा तू मुलहद बन के आ, मैं कुरान पाक ते इतराज कर, मैं जवाब देना, लेकिन ऐलान करना पएगा कि तेरा तल्लक कुरान नाल कोई नहीं। चल इसे चीज ते आ जा, मैं ऐलान करना मेरा मिर्जा कादियानी नाल कोई तल्लक नहीं ने मैं ओदियां तहरीरां ते इतराज करना, मैनूं उन्हां दे जवाब दे, पता चल जांदा, दुध दा दुध पानी दा पानी हो जाएगा। सारिਆਂ ਨੂੰ जरा दिखा दिओ दे कमेंट के बकायदा तौर पर स्ट्रीम से सुन रहा कर रहा, लेकिन हिम्मत नहीं कि आन के गुफ्तगू कर सके या चैलेंज कबूल कर सके। और दज्जाल के ऊपर भी अगर कोई एतराज है तो गल कर, मैं देना और मैं साबित करना मजीद अगे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने दज्जाल से किड्डे किड्डे खुद दजल का मुजाहरे किए इंशाअल्लाह। अरे दे अगे पहला दिन सी इस मौजू से, अगे 4 नशिस्तां होणियां ने इस मौजू से, मजीद घबरा ना, एक एक पोल बाद में खोल के बयान करांगा इंशाल्लाह इस मौजू से। लो जी हकीम साहब, उबैदुल्लाह लतीफ़ भाई का भी चैलेंज है, मेरा भी चैलेंज है, किसी भी इख्तलाफी मौजू पे बात कर लो मुझसे, लेकिन शर्त वही है एक मौजू आप तय करेंगे, मैं तय करूंगा, एक पे आप बात कर भाई एक और चैलेंज है मेरी तरफ एक और चैलेंज है पूरी मरजाइयत में। अज दे इस प्रोग्राम सब नूं पता है कि मेरी कंडीशन बीमारी के एतबार नाल की है, मेरा रब जानता है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद मैं सब नूं मुबाले का चैलेंज देना, और मेरा मुबाला कर लो, पूरी मरजाइयत नूं मैं मुबाले का चैलेंज देना, बशमूर मिर्जा मसरूर ते मेरे नाल मुबाला करो, मुबाले का चैलेंज है, हिम्मत ते कबूल करो गल। लो जी अज की स्ट्रीम जे भी चैलेंज है जी दिया भाई। लो जी खाकसार कहता है, खाकसार की यही इल्तमास है कि पहले माफ़ी मांगी जाए, लगता है इसकी टकोर नहीं हुई अच्छे तरीके से, ये चाहता है मिर्जे गुलाम कादियानी की और ज़रा यहाँ पे करें, ये टिका के मौलवी, अभी इसको लगता है सुकून नहीं आया। मैंने पहले भी कहा है भाई, तुम्हारे मिर्जे काने कंजर सूर से हमारे कुत्ते भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, पालतू कुत्ते को भी कहें ना हम इसकी शक्ल दिखा के कि भाई देखो इस पे पेशाब करोगे, वो भी मुंह परे कर लेगा, मैं अपना पेशाब क्यों गंदा करूं। और चला जाए यार, ये दोबारा ना कहना कोई, मैंने पहले बता दिया है कि ना हमारी दुकान गंदी करो, मजीद कोई डिमांड वो किया करो जो मानने वाली हो। ज़िया भाई अज के प्रोग्राम से असीं चैलेंज देते ने, पत्थर सुट दिता है, हिम्मत है तो कबूल करा। चलें ठीक है जी भाई, अब प्रोग्राम का काम करते हैं, अगर हो ही इनमें हिम्मत तो ये बता देना कीमिया साहब, अगर किसी भी टॉपिक पे डिबेट करनी है, बात करनी है तो कर लेना, हम हाजिर हैं, आपके चैनल पे भी आके बात करने को तैयार हैं हम, शर्त वही है कि हमारा माइक नहीं बंद करना और स्ट्रीम से निकालना नहीं। इन्हें 2 मिनट नहीं चलने, उससे टाइम कहना कड्डो बाहर। ये आ गया जी, ये मुबारक मोची आ गई, ये मुझे इनबॉक्स में बता नहीं रहा था, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा ये तुम्हारे खलीफे ने मिर्जे मसरूर ने कहा है कि जी ये मिर्जे जो हैं ये बेटियों से जना करते हैं, कहता सबूत दो, मैंने सबूत दिया इसको ऑडियो का, तो कहता इसमें कहाँ है ये बात, मैंने कहा चलो ये बात नहीं है तो मुझे बता दो क्या बात हो रही है इसमें, बता नहीं रहा, शर्मा रहा है, 1 महीना हो गया ये इनबॉक्स में लगा हुआ था, बता ही नहीं रहा कि ऑडियो में क्या कह रहा है मिर्जा मसरूर, तो भाई मैंने अगर गलत समझा तो सही बता दे कि ये कह रहा है। आगे कह रहा है ज़िया जी कोई इमदाद की ज़रूरत हो तो राब्ता कीजिएगा, पहले मिर्जे मसरूर को दें जाके इमदाद, इन्होंने आज नया काम मिर्जे मसरूर ने शुरू किया, उसको 2 बड़ी ज़रूरत है, काम काज करते कौन नहीं है, मिर्जे गुलाम कादियानी से लेके आज तक जितने खलीफे इनके गुजरे हैं सारी रॉयल फैमिली मांग के खा रही है,
इन ये ज़हनी मरीजों से, साथ इनकी बेटियों को लगे हुए हैं, साथ इनसे चंदे ले लेके मांग तांग के खा रहे हैं और दूसरों को कहते हैं इमदाद की जरूरत हो तो राब्ता कीजिए। उसको दो, उसने अब नया ट्रिक पैसे इन मलंगों से लेने का, वो जिया इनकी भाई, जो रिजवाड़ा बना हुआ है ना, क्या उसका नाम है, बैतुल फतू। अब इन्होंने नया एक ड्रामा शुरू किया हुआ, कहते हैं इसके ऊपर किसी ने नाम लिखवाना है तो 10,000 पाउंड दें, उसका बैतुल फतू के ऊपर ना नाम लिखा जाएगा। जो जो फैमिली 10,000 पाउंड देगी, 25-26 लाख रुपया बनता है पाकिस्तानी, वो 25-26 लाख दो तो उत्ते ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ना बैतुल फतू जो मिर्जवाड़ा है उसके ऊपर नाम लिखा देंगे। उनको दो जाके, जिनको जरूरत है बेचारे, 100 ढंग उन्होंने बनाए हुए हैं पैसे बटोरने। जिया भाई, एक और बात बता देना चाहता हूँ मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। इंशाल्लाह आज से 2 साल पहले एक सिलसिला डॉक्टर जाहिया ने शुरू किया था तौहीन ईसा पर, एक प्रोग्राम इसने किया, तो मैंने आज से महीना 1.5 महीना पहले या 2 महीने पहले गार्बन इसके चैनल को चेक किया, तो वहाँ पर प्रोग्राम मौजूद था तौहीन ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से। और उस प्रोग्राम में, उस वीडियो में बना के तकरीबन 1.25 घंटे की वीडियो है, अपलोड की गई है। बार बार मुझे मुखातब करके कुछ सवाल किए हैं इसने, और हफ्ते रोज़ा अहले हदीस के हवाले दिए हैं, और बार बार मुझे मुखातब किया उस वीडियो में। लेकिन अफसोस कि जब ये वीडियो इसने अपलोड की है, उस वक्त मुझे कोई किसी भी किस्म का लिंक या राब्ता नहीं भेजा, अगर भेजा तो मेरे इल्म में नहीं। मैंने जब देखा तो इंशाल्लाह ये दज्जाल वाली सीरियल जो है वो ख़त्म करने के बाद उस वीडियो का हमने इसी स्ट्रीम पर जवाब देना है। तो मैं डॉक्टर जाहिया साहब से अर्ज़ करूँगा कि जिस दिन हमने जवाब देना है आपकी उस वीडियो का, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, तब भी आप आ जाइएगा और फिर हमारे सवालों के जवाब दे दीजिएगा। जो उसने वीडियो में आपने दजल, फरेब और धोखाधड़ी का मुजाहरा किया, इंशाल्लाह मैं इसी चैनल पर भी और इसी तरह एक स्ट्रीम करनी है शमसुद्दीन भाई के चैनल पर, इस हवाले से दोनों चैनल पर स्ट्रीम करूँगा इसी मौजू पर। तो आपने अपने उस दजल फरेब को जो हमने खोल के आपके सामने रखने हैं उसका जवाब देना है, जो इस वीडियो में तुमने मुझे बार बार मुखातब करके बात की है। इंशाल्लाह मैं वो उस वीडियो का लिंक भी भेज देता हूँ ज़िया भाई को और शमसुद्दीन भाई को भी, वो खुद देख लेते हैं और उनको डाउनलोड भी कर लें, क्योंकि वो चलानी है हमने स्ट्रीम पे। और यहाँ पर बाकायदा तौर पे लाइव इस बात को बता दे कि जब हम स्ट्रीम पे चलाएं तो किसी किस्म की जो है तुमने कंप्लेंट नहीं करनी हमारी, ये ध्यान में रखें। अभी मैंने उसका जवाब देना, ये बात मैंने तुम्हारे साथ पर्सनल में भी की थी कि मैंने तुम्हारी इस वीडियो का जवाब देना है। जी ज़िया भाई, प्रोग्राम को मेरे ख्याल में ख़त्म करना चाहिए। हकीम याजा आ गया, ये मुबारक मरजई आया हुआ है। मुबारक मरजई, ये मैं लिंक दे रहा हूँ, इनबॉक्स में तो नहीं बता रहे हो, यहीं पे बता दो कि ये मिर्जा मसरूर क्या कह रहा है। मैंने इसको कहा था कि ये बता रहा है कि ये मिर्जे जो है ना बेटियों से ज़िना करते हैं। कहता नहीं नहीं ऐसी बात ही कोई नहीं है, ये मैं चला रहा हूँ तो यहाँ आके बता दो, अगर मैं गलत समझाऊँ तो ये क्या कह रहा है, ये मैं चलाने लगाऊंगा। आज को जब आखिरी दफा साथी ने मेरे से खुशी छीनने की कोशिश की, फिर मैं वो करती हूँ जैसे उल्टी आती। मैंने 2-3 खतों में लिखा है मुझे उससे उल्टी आई है। अगर मैंने तो मैंने नहीं नहीं, इनको सजाएं नहीं बनती, ये आप कह रहे हैं कि सजाएं नहीं बनती आपके लिए। अच्छा फिर किसको फैसला करेगी किसने वो किया है जुर्म और किसने नहीं किया, ठीक है। हकीम यार ये आके बताना जरा क्या कह रहा है आपका आपका खलीफा। ये दूसरी भी सुन लो, दूसरा क्लिप भी सुन लो।
یہ مجھے اگر غلط سمجھ لگی ہے نا تو یہ بتا دینا ذرا آپ. آپ انصاف نہیں آپ مجھے یقین کر رہے تھے جب یہ آدمی نے انٹری مارے. آپ نے میرے بابا والی بات پہ بھی یقین کیا, آپ نے چچا مبشر والی بات پہ یقین کیا, اور آپ نے کہا میں یقین کر رہا ہوں. آپ نے نہیں سنے, ایک سیکنڈ ہاں تو سوال نہیں. اچھا اس کا بھی میں جواب دیتی ہوں. آپ نے انویسٹیگیشن تب کیوں شروع کیا جب یہ جو کھوتا ہے آپ کا سادہ وہ آپ نے اس وقت انویسٹیگیشن شروع کیا 3 مارچ کو, جب میں نے آپ کو بتایا انصاف کا تقاضا وہ بنتا تھا, یہ نہیں بنتا تھا جب آپ کا گھر تاؤ بھی لگا ہوا ہے اس وقت. تو پھر ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ آپ رو رہی ہیں, آپ یعنی تمہارے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں, تمہیں یہ ہو رہے ہیں, تو پھر آپ ٹوکلا بند کر رہے ہیں. بس میری مرضی جیسے آپ اپنی غلط مرضیاں میں کر رہے ہیں, میری مرضی میں نہیں آپ کی بحث سے نکلوں گی, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں نکلوں, اور آپ نے یہ مرضی نکلی ہے میری بحث سے, یہ میں آپ کو ہاں جی مجھے بیعت کا مطلب پتا ہے, الیجنس لینا کسی کا. لو جی ایک اور بھی سن لو کہ مبارک مرزائی کہہ رہا ہے یہ ایک گھریلو معاملہ ہے, اس میں ایسا کچھ نہیں. یہ چیک کریں جی مرزائیوں کی بغیرتی کا اندازہ کریں, ان کی بغیرتی چیک کریں. بس کیا کانفیڈنٹ بغیرت ہے جی. کہتا ہے یہ گھریلو معاملہ, اس میں ایسا کچھ نہیں. ہاں گھروں میں لگے ہوئے, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, گھروں میں لگے ہوئے ہیں. بٹے منہ تیرے ڈب کے نہیں مار دے تسی. ادھر تو کافی کچھ بیچا ہوا ہے, جو ایک کنجر خانہ کھلا ہوا ہے ہاتھ خاص میں, وہ تو ایک ریڈ زون ایریا کھلا ہوا ہے. ہاں عامر لگا ہوا ہے, ڈاکٹر مبشر لگے ہوئے ہیں, محمود شاہ لگا ہوا ہے, پورا بنا ہوا ہے. عامر بھائی تو میں کئی دفعہ بات بتا چکی, کیا کروں, ابھی کلیئر کٹ بات نہیں کر رہی ہوں. ان کو اریکشن نہیں ہوئی تو میں بھاگی ادھر سے. ہاں تو وہ سسٹم نہیں جب ہوا کام تو میں نے ادھر سے ایک اسپرنٹ ماری کہ یا شکر کھا آ کے نفل پڑے, یا اس دفعہ تم نے مجھے بچا دیا. میں نے تو نہیں پیش کیا, پیش کیا مجھے ایک دفعہ بتانے کا یہ جملہ تھا. لو جی بغیرتی چیک کریں. باپ بیٹی سے کہہ رہا ہے ایک بار تو تم نے پیش کیا نا اپنے آپ کو, پھر کہہ رہا ہے ایک دفعہ تم کر گزری ہو. کوئی غیرت ہی نہیں ہے, شرم ہی نہیں ہے, حیا ہی نہیں ہے باپ کو. بیٹی سے کہہ رہا ہے ایک دفعہ تو تم نے کر لیا ہے نا, جو اس کے ساتھ ایک دفعہ تم نے خود اپنی مرضی سے کر لیا, تو 2-4 اوروں نے کر لیا تو کیا ہو گیا, چپ کر جاؤ. یہ کہہ رہا ہے مرزا مسرور. پٹے منہ مرزائی ہے ڈب کے مار جاؤ. چلیں جی عبید اللہ لطیف بھائی آپ اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ اسٹریم کے ساتھ جلدی حاضر ہوں. کل ہم ایک اسٹریم کریں گے, مرزائیوں نے, یہ حکیم یاجا وغیرہ نے ڈرامے بازی کی ہے اور اس کا جواب دیں گے بابر بٹ صاحب. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اس کا جواب دینا, تو انشاءاللہ کل ایک لائیو اسٹریم کریں گے ہم, اس میں بھی لازمی شرکت کیجیے گا. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور جو نئے ساتھی شامل ہوئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیا کریں. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوتے ہیں. جاتے ہوئے نعرہ لگا دیجئے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.